Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, and we are back with our Wednesday session. And the topic for today, in continuation with the sessions that we are conducting on invoking Shakti, it is the Kriya Shakti. So let us have a quick recap of what all we have covered so far. The first session was an introduction to invoking Shakti, and then we started off with the 5 koshas. So 5 koshas means Anandamay Kosh, we covered the Ananda Shakti. Then in the Vigyanmay Kosh, we covered the Gyan Shakti. Coming to Manomay Kosh, we covered the Ichha Shakti, or we can say the Sankalp Shakti, thoughts and emotions, right? Then in the Pranamay Kosh, we covered the Prana Shakti. That was the last session. So we talked a lot about the Prana Shakti, how we can channelize the Prana Shakti, the universal cosmic life force energy in our chakras in the Pranamay Kosh. And today we are going to talk of everything culminating into the action by the body. So Kriya Shakti, right? So before we get into the actual topic and the discussions, let us first understand what is the difference between कर्म and क्रिया. हमने कर्म शक्ति क्यों नहीं बोला इसे, क्रिया शक्ति क्यों बोल रहे हैं? Spelling mistake, right? Or is there something more profound into it? So let's start with that inquiry. कर्म क्या है और क्रिया क्या है? कौन बोलना चाहेंगे? Who want to take the first step to say what is karma and what is kriya? Welcome Renu ji. Namaskar. So we are starting the discussion on Kriya Shakti. That is the topic for today. And the first question that I am posing to the group is, what is the difference between karma and kriya? Why it is called Kriya Shakti and not Karma Shakti? Any thoughts? Any thoughts? Anybody who has any point of view? All the answers are right, by the way. Huh? Maybe I can attempt, Sridhar. Anji, Vijay ji, go ahead. So, I mean, karma, as we discussed before also, happens irrespective whether there's action or no action. So, even if there is no action, there is karma happening. Whereas kriya, I believe, is an activity which is a forced activity a person does in order to get like sadhana. Okay. To get advantage, yeah. All right. आपने डिफरेंशिएट अच्छा किया है, बट उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना बाकी है. तो we will come to that. But anybody else who has any view, any point of view? What is karma and what is kriya? That is the question. And Vijayji says one is a conscious action, and the second one is a happening, which is happening by itself, right? Vijayji, ये दोनों आपने points बताए हैं, right? Okay. So I'm supposed to these karmas, but when I start these karmas doing, then it becomes kriya. Come again. I didn't get it. When you are thinking about doing something, it is? Suppose I should do this work. I should do this work, okay. But if I start doing this, then it becomes my kriya. Okay. All right. Anybody else who has any question? I mean, any other point of view? Sandeep ji, आप क्या बोलते हैं? Don't worry, there is no right answer, there is no wrong answer. We are just inquiring into it so that our understanding becomes clear, right? क्रिया कर्म का तो मुझे यही याद आ रहा है, जो क्रिमेशन करते हैं उसको क्रिया कर्म कहते हैं, वहाँ पता नहीं क्यों कहते हैं. वो भी अलग वजह है. हाँ, वो कर्म कांड भी है और अंतिम क्रिया भी है. अंतिम क्रिया है क्योंकि जो ओके, फर्स्ट लेट मी डिस्टिंग्विश, देन आई विल टेल यू व्हाट इज अंतिम क्रिया. हाँ, अंतिम क्रिया क्यों बोलते हैं? तो first let us understand the karma and the kriya. As Vijayji rightly said, one is done with conscious awareness in the outside world. जब भी आप consciously कुछ कर रहे हैं कर्म, तो वो बाहर की दुनिया में होगा ना. हाँ, जैसे मैं ये सेशन ले रहा हूँ, ये कहाँ हो रहा है? बाहर की दुनिया में हो रहा है.
तो ये कर्म है, ये कर्म है। अगर मैं अपने इनसाइड वर्ल्ड में कुछ कर रहा हूं तो वो क्रिया है। हाँ, तो विजय जी, यू गॉट द डिफरेंशिएशन राइट, बट द टर्म्स हैव टू बी स्विच्ड। बाहर जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, और जो इनसाइड वर्ल्ड में हो रहा है वो क्रिया है। यानी कि जो कर रहे हैं, जहाँ पे कोई करता है वो कर्म है। बचपन में पढ़ा था ना हमने हिंदी में, कर्ता ने कर्म को, हाँ, तो करण से करण से संप्रदान, बाकी सारे संप्रदान बहुत के सारे लिए हैं। अपादान। हाँ, तो मतलब क्या है, अगर कर्म कर रहे हैं तो कर्ता होना चाहिए, और कर्ता सिर्फ मानव हो सकता है। तो मानव ही है, मनुष्य जीवन में ही हम कर्म करते हैं, और कर्म बाहर की दुनिया में होता है। जो अपने आप से हो रहा है प्रकृति में, जो हो रहा है वो क्रिया है। अब हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, सांसें चल रही हैं, ओ राइट, अच्छा। अपने आप हो रहा है, ये क्रिया है। अगर मैं कॉन्शियसली भी कुछ कर रहा हूं लेकिन वो अंदर की दुनिया में हो रहा है तो वो क्रिया है। तो मैं जो प्राणायाम कर रहा हूं, जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, वो क्रिया है। मैं बाहर की दुनिया में कोई सेवा कर रहा हूं, वो कर्म है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो क्रिया शक्ति का मतलब ये है कि हम कर्तापन को जब छोड़ देते हैं तो कर्म अपने आप होता है। कर्म कौन कर रहा है? शशिधर कर रहा है। क्यों? सेशन ले रहा हूं, शशिधर सेशन ले रहा है तो ये कर्म है। पर अगर मैं सरेंडर कर दूं अपने कर्तापन को, जो हो रहा है डिवाइन के थ्रू हो रहा है, डिवाइन मेरे थ्रू बोल रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगी। तो मैं ना कर्म से अटैच होऊंगा, ना कर्म फल से अटैच होऊंगा, ना कर्तापन से अटैच हो रहा हूं। नाउ दिस बिकम्स ए क्रिया। यू अंडरस्टैंड? कर्तापन हटते ही कर्म क्रिया हो सकती है, क्योंकि करने वाला नहीं है, अब सब हो रहा है। तो नदी बह रही है, क्रिया है। प्रकृति में सब कुछ क्रिया है, राइट। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, क्रिया है। सूर्योदय हो रहा है, क्रिया है। सूर्यास्त हो रहा है, क्रिया है। गर्मी हो रही है, क्रिया है। तो प्रकृति में सब कुछ प्रकृति की क्रिया है, इसको प्रक्रिया बोलते हैं। यस, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग, देन इट इज क्रिया। इफ आई एम डूइंग समथिंग, देन इट बिकम्स ए कर्म। ओके, तो क्रिया शक्ति का मतलब ये है हम, या विजय जी, यू हैव अ क्वेश्चन? So I am doing something in the outside world, then it is karma. यस। But if I am doing something for myself, for the inner world, then it's a kriya, is it? यस यस। तो अंदर के दुनिया के लिए आप क्या करेंगे? आप या तो प्राणायाम कर रहे होंगे या मेडिटेशन कर रहे होंगे, राइट। सो दैट इज ए क्रिया वेयर यू आर नॉट इम्पैक्टिंग द आउटसाइड वर्ल्ड, यू आर इम्पैक्टिंग द इनसाइड वर्ल्ड। Okay. बट अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, खुश Karma. रहो, तो वो कर्म का कर्म हो जाएगा, बिकॉज यू आर इंटरेक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, करेक्ट। या सो दैट इज व्हाई दो ऑल द एनलाइटेंड बीइंग्स आर नॉर्मली मौन में रहते हैं वो, क्योंकि वो अपने अंदर की दुनिया में ब्लिसफुल हैं। और कोई आशीर्वाद लेने आता है तब वो सिर्फ कभी मौन में ही बोल देते हैं या फिर हाथ से एनर्जी भेज देते हैं। तो मिनिमम कर्म करते हैं, वो क्रिया में ही अपने एस्टैब्लिश्ड होते हैं। द होल यूनिवर्स इज वर्किंग अंडर क्रिया। ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर एडमेंट दैट वी आर डूइंग कर्म। एंड अगर मैं करता हूं तो मैं फिर भोगता हूं, तो इसलिए सुख और दुख के बंधन में हम फंस जाते हैं। कर्तापन छोड़ दोगे तो मैं करता ही नहीं हूं, तो मैं कर्म भी नहीं कर रहा, तो मेरे को कर्म फल भी नहीं मिलेगा, तो मैं बंधन में भी नहीं हूं। इसको क्रिया बोलते हैं। तो वी आर टॉकिंग ऑफ क्रिया शक्ति, right? So distinction is clear. Now when we are talking of Kriya Shakti, it is very important to understand what kind of Kriya are we doing. Yes, what kind of Kriya are we doing? So welcome Dr. Sapna Gupta जी, नमस्कार। आप शायद पहली बार आ रही हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कौन से ग्रुप से हैं, किसने इनवाइट किया आपको? जी, मैं आप इस देश के लिए क्या कर सकते हैं उस ग्रुप में हूँ। ओके, वहीं पे लिंक आया था, और अभी इससे पहले मैं अपनी रसाहार की क्लास में थी, तो ओके, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हुआ है। that is perfectly fine. So welcome to the session and थैंक यू सो मच। participate in it. And जब भी आपको कुछ शेयर करना हो या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो तो प्लीज शेयर करिएगा। या And you can also leave your number in the chat box, because this program is getting recorded. So I'll send you the recording of this program to you.
So you can write down your mobile number in the chat. You will get a WhatsApp Yeah. message. Yeah. Thank Thank you. you. Thank you so much, Thank sir. you. Thank Welcome. you. Yes. Right. So we're talking of, हाँ, हम कर्म और क्रिया की बात कर रहे थे, एंड क्रिया शक्ति की बात कर रहे थे। कोई सवाल अभी तक क्लियर है सबको? तो बाहर की दुनिया में अगर हम समराइज करें, बाहर की दुनिया में जो हम कर रहे हैं वो क्या है? वो कर्म है। और अपने अंदर की दुनिया को जब मैं प्यूरिफाई करना चाह रहा हूँ तो वो क्रिया है। तो क्रिया का कोई एग्जाम्पल दीजिए मुझे, क्रिया के बारे में कोई एग्जाम्पल दीजिए मुझे। अभी ये नहीं बोलना हार्ट बीट एंड और, वो मैं बोल चुका हूँ। हाँ, क्रिया योग की बात कर रहे हैं अब। कर्म योग और क्रिया योग। कर्म योग अगर होगा तो क्या होगा? निष्काम कर्म करना है, कर्तापन छोड़ना है, कर्म फल छोड़ना है, जो भगवत गीता में भी बहुत अच्छे से बताए हुए है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। करेक्ट? तो ये पूरा का पूरा कर्म का आधार है जो भगवत गीता में बोला गया है। तो ये तो हो गया हमारा, अगर ऐसे करेंगे तो ये कर्म योग हो जाएगा। क्रिया योग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्रिया योग के बारे में कुछ बताइए, कोई एग्जाम्पल। मेरा ख्याल सर, जो आपने डेफिनेशन में क्लैरिटी दी है उसी से आ गया क्लैरिटी कि जो भी आप कर रहे हो अपने जर्नी के लिए, फ्रॉम ईगो टू डिविनिटी, जो भी एफर्ट आप कर रहे हो वो सभी कुछ क्रिया में आ जाएगा, क्योंकि वो आप अपने चित्त को क्लीन करने में या फिर योगा कर पर रहे हो, उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हो। उसमें सत्संग और सेवा बाहर रहेगी, सत्संग और सेवा कर्म में ही रहेगा। ओके, तो है ना? साधना इंक्लूडिंग योगा, साधना एक्सरसाइजेस। इंक्लूडिंग, वो भी अगर आप योग आसन कर रहे हो पार्क में जाके तो वो भी कर्म में आएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो नहीं बाहर की लेकिन वो दुनिया तो में हो आप रहे हैं। अपने एडवांटेज के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, एडवांटेज की बात अलग है, लेकिन बाहर की दुनिया में कर रहे हैं, है ना? शायद मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हाँ, एरोबिक्स कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, ये सब बाहर कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन बाहर कर रहे हैं, ये सब कर्म में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। नहीं, ओके, कॉम्प्लिकेट नहीं हाँ, हुआ, मैं वही बताता हूँ। क्रिया में क्या बताता हूँ मैं आपको, आपने सुना होगा सुदर्शन क्रिया, जो आर्ट ऑफ लिविंग में रविशंकर जी कराते हैं ना। क्रिया क्यों बोलते हैं उसे सुदर्शन क्रिया? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम, एंड इट इज मेंट ओनली फॉर योर इनसाइड वर्ल्ड, दैट इज क्रिया। तो उसको हम सुदर्शन क्रिया के नाम से जानते हैं। और कितने लोगों ने परमहंस योगानंदा का नाम सुना है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिया योग। He was the founder of Kriya Yoga. Kriya Yoga एक साधना है वो भी, and another specialized technique of pranayam and meditation, which is for the purification of the inside world. वो spiritual journey को आपके rocket speed पे भेजता है. That means you can move in your spiritual journey at the speed of a rocket if you are doing that kind of a kriya. So kriya is meant only for the upliftment of your spiritual journey. Correct? बाकी भी हैं पर वो सब कर्म में आएगा। तो क्रिया इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, और ये गुरु के थ्रू लिया जाता है। आप अपनी मर्जी से क्रिया नहीं कर सकते। अपने आप से क्रिया करने है तो सिर्फ हार्ट बीट चलेगी, ब्रीदिंग चलेगा, सर्कुलेशन चलेगा, ये सब हो रहा है जो आपको नहीं मालूम है, प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, वो सब आप बोल सकते हो क्रिया है। बारिश हो रही है, धूप आ रही है, गर्मी हो रही है, ये सब क्रिया है, राइट? अनलेस आप आर्टिफिशियल क्लाउड्स भेज के कुछ कर रहे हो, तब आप करता हो जाएंगे। हाँ, तो आजकल लगे हुए हैं, सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल रेन्स एंड ऑल दैट। बट कमिंग बैक, नाउ वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज क्रिया। क्रिया में कर्तापन नहीं है। जिम आप जा रहे हो तो बोल रहे हो मैं जिम जा रहा हूं, तो आप कर्तापन में हो, तो वो कर्म है। क्लियर है? तो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कर्म एंड क्रिया। नाउ वी कम टू क्रिया शक्ति। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं अपने शरीर से? फर्स्ट थिंग इज, कर्म 3 लेवल पे होते हैं, थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स। करेक्ट? थॉट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति में कर चुके हैं। यस, कर चुके हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं वर्ड्स की। तो वर्ड्स का क्या है? तो क्रिया शक्ति इन द फर्स्ट लेवल वी विल टॉक ऑफ द पावर ऑफ राइट स्पीच, द पावर ऑफ राइट स्पीच, राइट? अब ये है कहते हैं क्रिया शक्ति, लेकिन हमारे शब्द जो हैं, हम बोलते हैं ना अक्सर कि आपकी जुबान पे सरस्वती माँ बैठी हुई है, हाँ, तो अगर आप सरेंडर कर दोगे डिवाइन को, द डिवाइन विल स्पीक थ्रू यू। यस और नो? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिया शक्ति, क्योंकि वो, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं करता हूं, लेकिन जब क्रिया शक्ति में हम बोल रहे हैं पावर ऑफ स्पीच, देन द डिवाइन इज ऑपरेटिंग थ्रू माय स्पीच।
So we have to speak in a divine manner, then it will become क्रिया शक्ति. अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है विजय जी. अब प्रैक्टिस करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्योंकि आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये कर्म है. If the divine is flowing through my mouth and the words are coming out in a spontaneous manner without my any effort, then it is kriya. Right? तो कर्म से क्रिया में जाने का रास्ता क्या है? सबसे पहले तो हाउ शुड बी माई स्पीच, हमारी ह्यूमन स्पीच कैसी होनी चाहिए. अगर उसमें डिविनिटी का तड़का लगाना है तो जो आमतौर पे अभी लैंग्वेज चल रही है वो तो नहीं चलेगी ना. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन वो वाली लैंग्वेज हमारी जो आमतौर पे हम बोलते हैं, या जो हम कॉलेज डेज में बोलते थे, हॉस्टल लाइफ में जो बोलते हैं, और या आजकल बहुत कुछ चल रहा है मूवीज में, सीरियल्स में, तो वो सब लैंग्वेज इज टोटल नो नो नो. वो क्रिया शक्ति नहीं है. तो क्रिया शक्ति में पावर ऑफ राइट स्पीच का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग ऑफ ब्लेसिंग्स. Yes, absolutely right. We are talking of blessings. We are talking of mantras. And we are talking of right speech. Right speech का मतलब क्या हो जाएगा? सत्य बोलना है, मीठा बोलना है, या नहीं, क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, ब्लेम नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, रोना धोना नहीं करना है, डांटना नहीं है, गालियाँ नहीं देनी. हाँ, सो ये है नहीं करने वाली चीज़ें. और जो करनी है, हमको दुआएं देनी है, हैप्पी टोन में बात करनी है, माइल्ड टोन में, स्वीट बोलना है, सच बोलना है. ये सब हमारे स्पीच को पावर देंगी, बिकॉज आवर वर्ड क्रिएट्स आवर वर्ल्ड. हैव यू हियर्ड दैट? आवर वर्ड क्रिएट्स आवर वर्ल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं वो हमारी जिंदगी को बनाते हैं. हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम बोलते हैं. अगर आप बोलोगे आई एम एंग्री, यू विल गेट मोर एंग्री. I am upset, you will become upset. I am stupid, you will become more stupid. तो I am के बाद आप जो भी बोलते हैं वैसा आप बन जाते हो. My word creates my world. So we have to be very, very careful about what kind of speech we are using. And why the importance of mantras? Mantras में इतना importance क्यों देते हैं मंत्र शक्ति के लिए? Mantras are God in the seed form. और हमारी सोल नहीं, मैं जो सोल हूँ, आई एम बेसिकली व्हाट, आई एम डिवाइन इन द सीड फॉर्म. मेरे को इस डिविनिटी को इन्वोक करना है और अपने कर्मों में लाना है ना. एंड मंत्रास आर वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल. तो जब आप मंत्र जप करते हो पूरी इंटेंशन और पूरी इमोशन के साथ, यानी कि भाव और भावना दोनों होती हैं, और पूरी शिद्दत के साथ किसी भी अपने इष्ट देव को बुलाएंगे और उनका मंत्र जाप करेंगे, तो यू आर इन्वोकिंग दैट डिवाइन इन योर हार्ट. एंड भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा ने कहा है, आई ड्वेल इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इन द डॉर्मेंट फॉर्म. तो उस डॉर्मेंट फॉर्म को हमको एक्टिवेट करना है, इन्वोक करना है. तो मंत्रास हेल्प. और शक्ति के लिए तो एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो किसी भी सिचुएशन में आप इन्वोक कर सकते हो. आपने सुना भी होगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Correct? Everybody has heard that? So that is a very, very powerful way of invoking Shakti in you. And that Shakti can be expressed in the form of Kriya Shakti. So these mantras are very powerful. उसके बाद आपकी वर्ड्स में इतनी पावर आ जाएगी, आप जो बोलेंगे वो होने लग जाएगा औरों की दुनिया में भी. Like a healer says, you are healed, and the person gets healed. सुना है आपने ये? हाँ, तो जो एनलाइटेंड लोग हैं वो सिर्फ अपने आंखों से देखने के बाद अपने उस एनर्जी से लोगों को हील कर देते हैं. कोई अपने हाथ की पावर से एनर्जी भेजते हैं और उसे हील कर सकते हैं. तो एज ए वैदिक हीलर वी ऑल नो डिस्टेंस हीलिंग. करेक्ट? तो डिस्टेंस हीलिंग से हम लोगों को हील करते हैं. कैसे करते हैं? वो इतनी पावरफुल एनर्जी है. व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, जब आप योग में हैं, यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, राइट? एंड दैट डिवाइन एनर्जीज आर फ्लोइंग थ्रू यू एंड गोइंग टू द हीलिंग देम. तो आपकी स्पीच में भी वही पावर है. तो अगर आप बोलोगे यू आर हील्ड,
people will get hit, but you have to generate that power. You have to generate that power with silence, with the mantra shakti, and then the power of right speech comes to you. Right? So let's have some sharing. What is opening up? कर्म और क्रिया का फर्क हमने समझ लिया. अब क्रिया शक्ति में हम सबसे पहले वाक शक्ति की बात कर रहे हैं. वाक सिद्धि या वाक शक्ति, which is the art of or the power of right speech. So I hope all of you are understanding it. And meanwhile, let me also welcome Aditi ji. You welcome to the session. Anything you would like to share about yourself? Who has invited you? You're most welcome. Yes. Right. Or you can share whenever you are comfortable. So for others, any questions regarding the power of right speech? कैसे हमको अपनी स्पीच को पावरफुल बनाना है? And always remember, my word creates my world. That is the punchline. If you remember this, you will always use powerful words in the form of mantras, in the form of blessings. And the most powerful prayer is also of gratitude, by the way. Thank you, Divine, for whatever you have given to me in my life. Thank you for all the abundance in my life. So you can thank the Divine for all the abundance you are getting in your life, for all the resources you have in your life. So gratitude is a very, very powerful form of prayer. भगवान से मांगना नहीं है, भगवान को धन्यवाद करना है. सबसे पावरफुल प्रेयर वही है. अक्सर हम बोलना शुरू करते हैं, सबसे पहले मांगना शुरू कर देते हैं, भगवान से भी, लोगों से भी. मांगना नहीं है. इफ यू आर डिजर्विंग, इट विल कम टू यू. होते हैं ना. कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो. कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी. So it's very, very important what kind of speech we are using. People will fall helplessly in love with you if you are using the power of right speech. Yes. So anybody who wants to share anything? What is opening up? Any insights? Anything you want to share? And then we move to the next topic, which is the power of right action. Welcome, welcome, Kapil ji. Yes. No questions? हाँ, सब कुछ समझ में आ रहा है या सब कुछ ऊपर से निकल गया है? Right. Okay. So I sincerely hope that सब कुछ समझ में आ रहा है. Yes, yes, संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? समझ आ रहा है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से मैं ग्रेटिट्यूड की प्रेयर से ही शुरू करता हूँ. वेरी गुड. मॉर्निंग जो है स्टार्ट्स विद ग्रेटिट्यूड प्रेयर. एब्सोल्युटली परफेक्ट, वंडरफुल. एंड विजय जी तो बहुत पुराने ग्रेटिट्यूड के फैन हैं. हाँ, ही इज ए बिग फैन ऑफ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. एंड अमित जी आल्सो. राइट. वेरी गुड. सो अभी तक क्लियर है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कर्म एंड क्रिया, वी हैव टॉक्ड अबाउट कर्म योग एंड क्रिया योग, and we have also seen the power of right speech, Vak Shakti. Yes. Now we move on to the power of right action. तो right action को कैसे हम डिफाइन करेंगे? right action क्या होता है? कर्म हमेशा किससे अलाइन होना चाहिए? आपके कर्तव्य से, आपके धर्म से, है ना. तो धर्म इज नॉट रिलीजन, बाय द वे. धर्म इज आपका जो बेसिक नेचर है. तो as per our basic nature, as per our role that we are playing, we have some duties. तो उस ड्यूटी को लाइन में रखते हुए, that means when our कर्म is in line with the धर्म, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जब हम कर्म कर रहे हैं तो वो राइट कर्म कहा जाता है. राइट. सो दैट इज द पावर ऑफ राइट एक्शन. और उसमें आ जाएगा डिफरेंट कैटेगरीज जो हमने बात भी करी थी. निष्काम कर्म आ जाएगा, सकाम कर्म आ जाएगा और निषिद्ध कर्म आ जाएगा. 3 तरीके के कर्म हम करते हैं बाहर. यस. तो निषिद्ध कर्म तो प्रोहिबिटेड है, वो तो करना ही नहीं है. वो तो पूरा का पूरा तामसिक है एंड एब्सोल्युटली इलीगल एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं, तो वो तो करने नहीं है. नो पॉइंट गिविंग उसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. वी ऑल नो. तो चीटिंग, डेकॉइटी, रॉबरी, मर्डर, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, ड्रग्स, स्मगलिंग, ये सब, मर्डर, ये सब नहीं करना है, तो प्रोहिबिटेड है.
दिस इज द निषिद्ध कर्म। सकाम कर्म वो हैं जो फिल्ड विथ डिजायर हैं, डिजायर। तो डिजायर होना कोई बहुत गलत बात नहीं है। ओनली थिंग इज डिजायर शुड नॉट ओनली बी फॉर मी, इट शुड इंक्लूड एज मेनी पीपल इन माई लाइफ। तो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए अगर मैं कर रहा हूँ और उसमें मैं इंक्लूडेड हूँ, इट इज फाइन। सो एज ए हीलर, इफ आई एम हीलिंग पीपल and then I also want an energy exchange for that, which is okay. Sakam hai, but it is a very good karma because I am talking of welfare of the people, right? So sakam बुरा नहीं है, only thing is it should not be limited to मैं, मेरे बच्चे, मेरी family, so not a small circle, it should be big circle. So increase the circle and make it beneficial for all the people in your life. Then sakam is also perfect, right? So that is the right action. तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने धर्म का पालन करते हुए आपको कर्म करना है। थर्ड वन इज परफेक्ट वन, विच इज निष्काम सेवा। निष्काम कर्म करना है विदाउट एनी स्वार्थ। आपका कोई स्वार्थ है ही नहीं उसमें, आप सिर्फ सेवा भाव से कर रहे हैं, एंड इट इज विदाउट एनी डिजायर्स। यू आर हेल्पिंग समबडी हु कांट इवन हेल्प, वो चाहे तो भी आपकी वापस कोई रिटर्न नहीं दे सकता, ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हो आप। तो दैट विल बी निष्काम सेवा। यस, एंड निष्काम सेवा जो है जिसमें कर्तापन नहीं है, तो वो आपका क्रिया में आ जाएगा। So that is the highest level of karma yoga that you can talk of. Making sense? So let us have some examples of right action, power of right action. क्या हो सकता है power of right action? कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमको करने चाहिए जो इस कैटेगरी में आएंगे right action में? Helping people. Helping people, okay. सेवा, ये सेवा भी किस में आ जाती है? एक आता है हमारा करने वाले कर्तव्य में आता है दान। तो सत्संग और सेवा तो आ ही गया, लेकिन एक जो मेन कर्म आता है वो है दान। तो दान कैसे करते हैं हम लोग? ढिंडोरा पीट के, शोर मचा के, मैंने इतने पैसे दान किए, मेरी फोटो खींचो, मेरा बड़ा बड़ा नाम आना चाहिए, बेंच पे लगाऊंगा पार्क में और उस बेंच पे लिखा होना चाहिए डोनेटेड बाई शशिधर। हाँ, ऐसा होना चाहिए। मंदिर में भी लिखा रहता है। हाँ मंदिर में भी ईंट जोड़ते हैं। हाँ, तो ईंट रखिए, एक ईंट रखिए और उसमें नाम आना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल आप अपने अभिमान के लिए कर रहे हैं। दान इसलिए करते हैं कि आपकी ईगो घटे। आप दान करके अपना ईगो बढ़ा रहे हैं, तो उस दान को कोई फायदा नहीं होगा, वो क्रिया नहीं है, वो तो बिल्कुल सकाम कर्म है, और बल्कि बहुत लो लेवल का सकाम कर्म है। हाँ, दिए 100 रुपये, ढिंडोरा पीट दिया 1000 रुपये का। तो वैसा है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ दान। तो सात्विक दान होना चाहिए, तामसिक नहीं, राजसिक भी नहीं, सात्विक। तो तमस और रजस से हटके ही जो कर्म होगा वही आपका कर्म राइट कर्म होगा। राइट मतलब इट इज रेजिंग योर कॉन्शियसनेस टू द हाईएस्ट लेवल, उसको हम राइट बोल रहे हैं। अदरवाइज देयर इज नो राइट और रॉन्ग। राइट का मतलब है विच इज रेजिंग माई कॉन्शियसनेस टू द नेक्स्ट हायर लेवल, करेक्ट। तो तमस से निकल के रजस में आना है, रजस से निकल के सत्वा में आना है। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज 3 लेवल्स। तमस, रजस एंड सत्वा तो सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा, आई कैन क्लैरिफाई, राइट। Right. So that is the level of talking, that is the level of karma that we are talking of. तो एक बहुत अच्छा कर्म है जो हमको करना चाहिए, जो क्रिया में आता है, वो है दान। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तपह। तपह सुना है? पहले हमने सुना है कि साधु लोग जो होते थे, तपस्वी जो होते थे, वो तपस्या करते थे। तो आज की डेट में आपको जंगल में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपकी तपस्या क्या है? आपकी तपस्या क्या है? योर डिटर्मिनेशन, योर परसिवरेंस टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ धर्म। सत्य और धर्म के रास्ते पे दृढ़ता पूर्वक चलना है, साधना करनी है, सत्संग करना है, सेवा करनी है, ये है आपका तप, राइट। तो दान, तप, और तीसरा है यज्ञ। अब यज्ञ, शास्त्रों में यज्ञ बोला गया है, वैसा यज्ञ नहीं करना। यज्ञ क्या होता है? एवरी एक्शन इज एन ऑफरिंग टू द डिवाइन, दैट इज माई यज्ञ। और उसमें सब अपनी आहुति, यज्ञ में आहुति देते हैं। आहुति में क्या करते हैं? स्वाहा। तो हमको क्या स्वाहा करना है? हर कर्म में हमको क्या स्वाहा करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह,
मद, मत्सर, स्वाहा। अपने हर कर्म में हमको भगवान के लिए अर्पित करते हुए जाना है, अपने सारे विकारों की आहुति देनी है, ये यज्ञ है। करेक्ट। तो ये 3 कर्म बोले हुए हैं, जो भगवत गीता में भी बोले हुए हैं, बाकी स्क्रिप्चर्स में भी बोले हुए हैं। ये 3 कर्म हमको करने वाले हैं। ये हर मानव को ये 3 कर्म करने चाहिए और करना जरूरी है, ताकि उसकी चेतना उच्चतम स्तर पे पहुंचे। तो एक और बार पूछ लेते हैं, क्या है वो? पहला है दान, दूसरा है तप, और तीसरा है, क्या है तीसरा? यज्ञ। 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 ठीक है। और ये सब सात्विक लेवल पे होगा, तमस नहीं, रजस नहीं, सिर्फ सात्विक लेवल पे, तब वो क्रिया शक्ति बनेगी। राइट। तो ज्ञान मैंने काफी दे दिया है, अब थोड़ी सी शेयरिंग हो जाए, और इसको प्रैक्टिकली कैसे लाइफ में उतारना है, दैट विल बी योर टेक अवे। यस, ज्ञान मिल गया? कितने लोगों को ज्ञान मिल गया? सबको ज्ञान मिल गया। कितने लोग अब ये करने वाले हैं? भाई जब पिछली बार मैंने एक होमवर्क दिया था, किसी लोगों ने प्रैक्टिस किया उसे? हाँ, मैंने किया। क्या था पहले तो ये बताइए, लोग भूल गए हैं क्या है, क्या दिया था, बताइए। रेणु जी बताइए अब क्या था, सांस और अपनी। हाँ, वेरी गुड। क्या था? सांसों पर ध्यान देना, हाँ, और आती सांस के साथ डिविनिटी को हम ग्रहण कर रहे हैं, और जाती सांसों के साथ स्व को छोड़ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपने रोज किया, 5 मिनट करना था? हाँ, मैंने ओके। किया आप तो वैसे भी वैसे प्राणायाम करते हैं ना, ये तो उनके लिए था जो प्राणायाम हाँ, नहीं करते। मैंने कहा था 5 मिनट के लिए आप सबको ये करना है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, शेयर करिए। 5 मिनट आपने किया, 7 दिन हो गए करते करते, अगर रोज कर रहे हैं तो व्हाट वाज द डिफरेंस? मैं बोलूँ सर? हाँ, आप बताइए, क्या फर्क लगा आपको? हाँ, कुछ फर्क लगा? बहुत फर्क लगा सर, क्योंकि ओके। मैं पहले तो बहुत करती थी, इधर करती हूँ, लेकिन बीच बीच में थोड़ा गैप चला जाता था। हम्म। आपकी वजह से, आपके आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से, ये चीज जो 5 मिनट के लिए आपने कहा, लेकिन रेगुलर किया, रेगुलरिटी का बहुत फर्क पड़ा। यस, दैट इज और इम्पोर्टेंट। ऐसा लगता था उन क्षणों में, और एकदम अर्ली मॉर्निंग में उठ के करती हूँ, तो उस समय ऐसा लगता है ना कि 24 घंटे में या अभी तक में जो मेरे अंदर पॉइजन आ गया है, जो भी नेगेटिव चीज आ गई है, वो सब निकल रहा है। लेकिन जब आपने कहा कि डिविनिटी ले रहे हैं और स्व को छोड़ रहे हैं, तो स्व को जब छोड़ने की मैं कोशिश की, तो एक अलग ही लेवल पे चली आई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वो बहुत ही बढ़िया। स्व वेरी गुड। स्व को छोड़ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ना मैं अब आसमान और पृथ्वी के बीच में हूँ, ऐसा लगा। Okay, get that. I understand your feeling and what you मुझे ऐसा लगा experienced. कि मुझे मुझे छोड़ना है, तो सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं तो हूँ ही नहीं, फिर मैं क्या हूँ? मैं गॉड के पास भी नहीं पहुंची हूँ, तो मैं बीच में हूँ, ऐसा लगा। Okay, perfect. तो करते जाइए, 21 दिन में आप वहां पहुंच जाएंगे। हम फिजिकली नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मेंटली यू विल बी कनेक्टेड विद द डिवाइन। इसी को योग बोलते हैं। When you are connected with the divine, you are in योग। योग is what? Union with the divine. Correct? Very good, रेणु जी, बहुत बढ़िया। Let's acknowledge रेणु जी, wonderful effort. थैंक यू सर। और सिर्फ एक It is जने ने because of किया, you. और देखिए 7 दिन में ये अवसर है। मैंने 21 दिन के लिए प्रॉमिस मांगा था आपसे, 5 मिनट 21 दिन, एंड सी द डिफरेंस। यू विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। एंड बाय द वे, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। 90% of the toxins in your body and mind go out by breath. And all I said was, प्राणायाम भी मत करो। मैंने कहा था सिर्फ सुबह उठ के बैठो, आते श्वास को देखो, जाते श्वास को देखो, और सिर्फ इतना करना है, इनहेल डिविनिटी एंड एक्सहेल ऑल द negative traits of the ego. So divinity आई, ego गया, that's it. Whichever way you want to say. Inhale positivity, exhale negativity. Do this for 5 minutes for 21 days and see the magic in your life. आपका टॉक्सिन्स लेवल बॉडी से चला जाएगा, बहुत लाइट फील करोगे, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, माइंड विल बी सेंटर्ड एंड रिलैक्स्ड, and mind will become very very alert and positive. Yes, very good रेणु जी, once again great. Let's एक चीज acknowledge. मैं शेयर करूं सर? हाँ जी, एक हाँ चीज जी। मैं शेयर करूं? हाँ। मुझे थोड़ा सा आपसे इसमें मुझे आपसे थोड़ा ज्ञान चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ आपसे सर, क्योंकि मेरे लाइफ में मैं भी आदमी हूँ, मेरे में दुर्गुण भी बहुत सारे हैं, और
एक तो गुण होगा जरूर, भगवान ने सबको दिया, मुझे भी दिया होगा। लेकिन मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस है कि मुझे मेरे दुर्गुणों, मेरे सद्गुणों ने मुझे ज्यादा तकलीफ दी है। बताइए कैसे? मुझे इतना झेलना पड़ा है कि मुझे मतलब किसी को पसंद नहीं होता है कि मैं वैसा बिहेव करूं या वो काम करूं या वैसी बात बोलूं। अब अ, अब जहां पर सब लोग चाहते हैं कि रॉन्ग काम हो और उसमें वो पार्टिसिपेट करें, उनको बेनिफिट हो, वहां नहीं करूंगी तो उनको तो तकलीफ होगी। हम्म बातचीत भी आजकल हम लोग की बहुत बदल गई है, किसी भी सर्कल में आप जाइए। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके। तो उसमें ना अब इस तरह की बातें इररिलेवेंट मानी जाती हैं ओके, और किसी आई को फुर्सत अंडरस्टूड। नहीं है उससे बात करने मैं की। समझ गया आप क्या बोलना चाहिए। तो लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चाहिए ना आपको? जी जी जी। हाँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो भी आप साधना कर रही हैं वो क्रिया है, वो आपके अंदर की दुनिया को साफ करेगा, है कि नहीं? यस। तो अंदर की दुनिया जब साफ होगी तो उसी से आपकी बाहर की दुनिया बनती है। वी ऑल नो दैट आउटसाइड वर्ल्ड इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड वर्ल्ड। यस और नो? यस सर, यस सर। यस। तो जब आप क्रिया कर रहे हैं, अंदर की दुनिया जब साफ हो रही है, जैसे आपने 5 मिनट प्राणायाम किया और मेडिटेशन और ध्यान कर रहे हैं, तो क्या होगा? अंदर की दुनिया साफ होती रहेगी, बाहर की दुनिया अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो लोग उस वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करते वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, और नए लोग आ जाएंगे जिनकी वाइब्रेशन उससे मैच करती है। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड फ्लोर में अलग लोगों से मिल रही हैं, 7th फ्लोर पे अलग लोगों से मिलेंगी। यस और नो? शायद इसीलिए आप लोग मेरे लाइफ में आए और मुझे इतना सुंदर यस। सत्संग सुनने So का you मौका are मिला। connecting with the higher energy of the people when you are rising to the higher level. ग्राउंड फ्लोर पे अगर बारिश आ रही है तो ग्राउंड फ्लोर में परेशानी आती है ना, कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं। छत पे जो बैठा हुआ है उसको तो मजे ही आ रहे हैं, राइट? तो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द रेन ड्रॉप्स कमिंग इन, और तो पानी भर गया नीचे ग्राउंड फ्लोर में, वो तो ग्राउंड फ्लोर वालों की परेशानी है। तो चेतना अगर निचले स्तर पे है तो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी चेतना उठेगी वो तो नीचे ही रह जाएंगे ना, या तो आपकी लाइफ से चले जाएंगे या सुधर जाएंगे, आपके साथ आना है तो आप अपनी दूसरे साधना पे काम करिए, क्रिया पे ध्यान रखिए। कर्म तो बाद में करेंगे आप। यही फर्क है क्रिया शक्ति में। हम कर्म शक्ति नहीं बोल रहे, हम क्रिया शक्ति बोल रहे हैं। क्रिया सही तरीके से करिए, आपके कर्म बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा। एक इंसान है जो जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं करूंगा, है ना? हमको कर्म करना ही नहीं है। आप साक्षी बन जाइए, आप क्रिया में पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। अभी वो थोड़ा सा फार स्ट्रेच हो जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी आप सिर्फ इतना पकड़िए कि आपने क्रिया पे ध्यान देना है, अंदर की दुनिया को साफ करना है, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। बाहर की ले दुनिया देखिए में, मेरा, हाँ जी कुछ बोल रहे हैं? ले देखिए मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे बोलना कम करना होगा, मुझे इंटरेक्शन कम से कम करना होगा। आप मौन मैं रखिए, आप मौन मौन ही रखिए, रख रही पावर ऑफ स्पीच दे सुनिए, क्योंकि अगर आप बोलते हैं बाहर की दुनिया में लोग ऐसे ही हैं तो वैसे ही लोग मिलेंगे। आपने बोल के उनको प्रूव कर दिया है। आप बोलिए मेरी लाइफ में सारे लोग बहुत, क्या बोलेंगे, एंजल्स हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ एंजल्स हैं जो मेरे साथ लव पीस एंड जॉय शेयर करते हैं, फिर देखिए क्या होगा, वैसे ही लोग मिलेंगे। आप कह रहे हैं दुनिया में ऐसे सोशल सर्कल में, हर सोशल सर्कल में ऐसी गंदी बातें हो रही हैं, ऐसा ये ऑफिस हो में रहा है। भी अब है। आप जो बोल रहे हैं वही तो हो रहा है आपकी लाइफ में, है कि नहीं? अच्छा, उल्टा तो हो हाई रहा है। लेवल पावर ऑफ स्पीच बढ़ाइए, मंत्र शक्ति करिए, मौन रखिए, और पावर ऑफ स्पीच, स्पीच कम बोलना है लेकिन जब बोलें तो वो दुआएं निकलें, तब आपका पावर ऑफ राइट स्पीच आएगा, तब आपका पावर ऑफ राइट एक्शन आएगा। बहुत बढ़िया रेणु जी, लेट्स एक्नॉलेज रेणु जी। ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Yeah, and if this has made a difference in your life, trust me, this will be the turning point of your life. और जो बाकी लोग शांत बैठे हुए हैं, हाँ, आपको देखना है ये आपकी लाइफ में कैसे बदलाव ला सकता है, पर उसके लिए पहले क्रिया करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, अंदर की दुनिया को साफ करिए, तब देखिए बाहर की दुनिया में सिर्फ चमत्कार होगा। मैजिक। You are in the divine world of magic. That is what you will experience. Very good. Anybody else wants to share anything or ask? अदिति जी कुछ बोलना चाहेंगे? संदीप मेरा जी? ख्याल Thank you, ये sir. बहुत अच्छा। Thank Yes, you. yes, Aditi, go ahead.
आई थिंक थैंक यू। मैं ये सीख पाई हूँ कि कर्म और क्रिया सेम चीज नहीं होती है, और इनर प्यूरिफिकेशन पे मैं फोकस करती रहूँ। तो आई थिंक वो एग्जाम्पल फ्लोर्स वाला बहुत ही प्रोफाउंड है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो Which मच। one was that? फ्लोर वाला, आप हाँ, फ्लोर फर्स्ट वाला। फ्लोर पे अलग लोगों से मिलते हैं एंड 7th फ्लोर पे अलग लोगों से मिलते हैं। तो आई थिंक मैं Yes. उसको आई एम स्टेइंग विद इट टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर Yes, and let me give practical you. aspect of life. So let me give you that example. First floor is basically you are operating at the root chakra or the Mooladhara. And seventh chakra is supposed to be the seventh step, seventh floor, which is the Sahasrara or the crown chakra. So highest level of consciousness and the lowest level of consciousness. That is what I mentioned. So that is a comparison. Okay. Since you said first and seventh, I thought let me make it clear. हम सब रूट चक्र से ही शुरू करते हैं अपनी जर्नी। अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, जो कि हम सब हैं, एंड रूट चक्र के कॉन्शियसनेस, मूलाधार के कॉन्शियसनेस से ही शुरू करते हैं, जो कि सर्वाइवल से शुरू होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम हायर चक्रास पे जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगी, या तो लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा या लोग चेंज हो जाएंगे। एंड आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 1996 precisely, that was my starting of my journey. Till then it was full chaos, total disorder. मतलब ऐसा लग रहा था मैं किसी वार जोन में खड़ा हूँ, सब मारने पीटने में लगे हुए थे एक दूसरे को। रिलेशनशिप्स कोलैप्स्ड, जॉब कोलैप्स, बॉसेस के साथ मारधाड़, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। पुलिस केस, ये केस, डिमोलिशन, एमसीडी, व्हाटएवर you can think of, everything was happening, right? And today when I have raised my consciousness, it is all love, peace and joy. There is no question of any conflict with anyone in my life. So that is a kind of magical life that is possible. तो अगर आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इट इज बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग एट ए वेरी लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, क्रिया पे ध्यान दो, कर्म तो अपने आप होते रहेंगे, क्रिया पे ध्यान दीजिए एंड यू विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। वेरी गुड अदिति जी, ग्रेट, यू कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड if it has made some impact on you, I would be really happy for that, right? So all the people who are come For here for the example? first time, you can leave your mobile number in the chat box. I will send the recording of this program also to you, and then you can also access the YouTube where there are more than 300 videos lined up, so you can pick up anyone, right? All right, very good. Let's acknowledge Aditi ji. Great. Anyone else who wants to share anything? Vijay ji. मैं बोलना चाह रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू रेनू जी टू मेंशन अबाउट व्हाट शी हैज बीन डूइंग एंड अबाउट द चैलेंजेस। शशिधर जी, मैंने भी वैसे होमवर्क किया। अरे वाह, क्या बात। लेकिन जब होमवर्क किया तो साथ में कंटेम्पलेट किया, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज आया था कि पहले मैं बोल रहा था कि चलो आई मीन सांस अंदर लेते टाइम पे पॉजिटिव थॉट्स, और सांस लेते टाइम पे फियर निकाल रहे या फिर कुछ भी निकाल रहे। बाद में मैंने सोचा, जब कंटेम्पलेट किया, जब फियर है ही नहीं अंदर तो निकालोगे क्या? हाँ, वेरी गुड। तो वेदर आई एम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, आई एम ओनली थिंकिंग पॉजिटिव। वेरी गुड, ये तो अल्टीमेट तो स्टेज पे है। हाँ, ये तो नेक्स्ट स्टेज है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा था कि मैं एक्सहेल करूं तो कुछ नेगेटिव करूं। कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो यू कनेक्ट विद द डिवाइन। डिवाइन से क्या मिलेगा आपको? डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन विजडम। रेडिएट लव, पीस एंड जॉय टू ऑल। तो इनहेल बस, हाँ, डिवाइन वही। लव, इनहेल डिवाइन लव, एक्सहेल लव टू एवरीबॉडी। ग्रेट। एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, क्षमा फॉरगिवनेस। भाव। वो जैसे संजीव भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं ना, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो वो बीमार है, बीमार है, बिल्कुल सही। माफ करो, उसको आगे बोलो गेट बढ़ो। वेल सून मामू, मामू गेट वेल सून। हाँ, अमित जी ओके। कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हैं आजकल, नहीं तो अमित जी की बातें भी सुनने में बड़ा मजा आता है। हाँ, वो आजकल बहुत ज्यादा टाइड अप हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, बट ही इज देयर, एटलीस्ट ही इज हैंगिंग ऑन टू द presence of the session, so I'm sure he would like to share whenever he wants to. That's great. Right, so but let's acknowledge Vijay ji, thank you. Renu ji and Aditi ji. Yes. Anybody else who wants to share anything or ask anything? Gyan part khatam ho chuka hai. We have talked about Kriya and the importance of Kriya in the form of Vak Shakti, which is the power of speech, and the Kriya Shakti, which is the power of actually the right action. So right speech and right action can create magical results in your life. And that is possible when you have done all the other homework. पूरा का पूरा आपने बाहर से अंदर आए हुआ आनंद शक्ति है,
ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, प्राण शक्ति है और फिर क्रिया शक्ति है। सीधा क्रिया शक्ति में नहीं घुस सकते, आपको वो सारे बैकअप चाहिए। यू शुड बी फीलिंग हैप्पी, गिविंग थैंक्स, दैट इज अ मंत्र, राइट? फॉर आनंद शक्ति, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, तो आपका आनंद शक्ति में आ जाएंगे। ज्ञान शक्ति में आपको डाउनलोड मिलेगा, यू हैव टू डू इन मेडिटेशन। चलते फिरते डाउनलोड नहीं मिलेगा आपको, यू हैव टू सिट इन मेडिटेशन, ध्यान करेंगे तो आपको वो डिवाइन डाउनलोड मिलेगा, एंड दैट विल ओपन अप द विजडम फॉर यू, डिवाइन विजडम विल कम टू यू। उससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी, और फिर उससे प्राण शक्ति बढ़ेगी, एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी आ गई है, नाउ यू कैन पुट दैट इनटू एक्शन। So all this is very, very important sequential. That is why we have covered 6 sessions only to invoke the Shakti in you. Shiva is always there. We have to invoke the Shakti, and it doesn't matter whether you are a male or a female. वो तो सिर्फ कॉस्ट्यूम है। आत्मा के लेवल पे हम शिवा शक्ति का कॉम्बिनेशन है। शिवा is the potential and Shakti is the kinetic energy. Potential energy and kinetic energy मिल जाएंगे, it will be magic. And the consciousness has to rise from the root chakra to the third eye chakra at least. चलो सहस्रार छोड़ देते हैं, I'll give you some concession. You come to the third eye chakra, that is good enough. So that is also called the Kutas chakra बोलते हैं. Kutas, that is the Christ consciousness, third eye chakra. So you come there, you will create magical. Even that is the first level of samadhi, by the way. Correct? तो हमको क्रिया पे ही ध्यान देना है, क्रिया शक्ति पे ध्यान देना, कर्म तो हो ही जाएगा। सर आपने शिव और शक्ति की को क्या कहा, आपने क्या नाम दिया शिव और शक्ति की शक्तियों को? शिव और शक्ति हमारे आत्मा का ही, हमारे आत्मा में दोनों हैं। लाइक यू नो, द आत्मा जो है हमारी, वो शिवा है, दैट इज अ साइलेंस। ओके, सो द स्टिलनेस, इसीलिए बोलते हैं ना, बी स्टिल एंड साइलेंट एंड नो दैट यू आर गॉड। So you can change that and say, be still and silent and know that I am Shiva. तो शिवा, जब आप साइलेंस में बैठेंगे तो आपको शिवा का एक्सपीरियंस होगा, पर आपको शक्ति भी चाहिए, तभी आप एक्शन में आएंगे। इसीलिए ये 5 शक्तियों को हमने एम्फसाइज किया है, आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति और क्रिया शक्ति। अब इसके बाद एक ही शक्ति बच जाती है जो मैं टच नहीं करना चाह रहा आज, लेकिन मैं बता देता हूँ। कुंडलिनी शक्ति will rise from the root chakra to the third eye chakra to meet the Shiva at the third eye. That will be the कुंडलिनी शक्ति ascent. ये तब होगा जब ये 5 शक्तियों के साथ आप सही तरीके से तालमेल के साथ जी रहे हैं। Then the कुंडलिनी शक्ति will rise through the 7 major chakras through the Shushumna, and then it will meet the Shiva consciousness at the third eye chakra and then move on to the Sahasrara. वहां पे आपको, you can say, you will become one with the universe. That is enlightenment. Renu ji, is that okay with you? हाँ। Just dwell into that. If you have any question, we will take that later. मैं कुंडलिनी शक्ति पे बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि हम ये 5 शक्तियों पे 99% of the population can work on. कुंडलिनी शक्ति is only for that 0.00001% of the population. So that is not important. पहले 5 शक्तियों को तो हम ढंग से चैनलाइज कर लें, then we can talk of कुंडलिनी शक्ति. Yes, Amit ji, you raise your hand. Go ahead. So, are we going to talk about Kundalini Shakti in some of the next sessions? No. It is not for the Wednesday session. Acha. Just one question briefly. You mentioned that it meets the Shiva at the third eye, at the Agya. And then it rises further to Sahasrara. Yeah. So first level of samadhi happens at the third eye chakra. First level of samadhi will be experienced at the third eye chakra. So the Kundalini chakra Shakti has to rise from the Muladhara, coming through the 6 major chakras and rest at third eye chakra for some time. Correct. So this is a new thing for me, that it meets the Shiva element at the third eye. Okay. Shakti has to rise. Shakti has to rise to meet Shiva. Shiva consciousness is at the third eye chakra. Yeah. Third eye chakra and crown. And then from third eye, they both rise together to reach Sahasrara. Yes. Actually, I did not know this at all. Actually, it's a huge. Yeah. It's a huge chance. It's the next subject for me to read about. Shiva is always there at the third eye, dormant पे. Dormant क्या मतलब, वो तो dormant energy ही है.
पर शक्ति अच्छा, जब वहां मिल जाती है तो वहां पे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, ये मान लीजिए, and that explosion will expand to the whole universe. Think like that. When the two meet, it will be an explosion, and that will be the enlightenment. Got it. Right. But yeah, I Perfect. got my next stuff to read. ठीक है. Very good. All right. So we still have a few minutes. So anybody who has any question or anybody wants to share बस anything? एक चीज मैं शेयर कर रही हूँ सर, एक चीज सर। हाँ जी, हाँ जी। मैंने सुना था कि औरतों को जब ब्यूटीफुल बोला जाता है तो बहुत खुश होती हैं। औरत क्या मर्द भी होते होंगे, सुंदर सुनना किसी को भी अच्छा लग सकता है। तो सही अर्थ में जो सुंदर है ऐसे एक लेडी को मैंने बोल दिया यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और वहां पर औरतें ही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था बोलने में। मैंने बोला कि ये जो आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तो वो बोल रही है कि अरे ये तो हमेशा सबकी बड़ाई ही करती है। तो आप देख लो, कभी वो किसी को खराब बोलते हैं, सब ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, बोल के वो मतलब बुरा मान गई इस बात का। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे कल से क्या कहना चाहिए कि तुम बहुत कुरूप को देखने में ये बोलना चाहिए। तो बाकी लोगों से पूछा, बोलो भाई कौन बोलता है कि ये कुरूप है, ये बहुत सुंदर है इसलिए इसको बोला। तो शी वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया किसी को। आपको जो ठीक लगता है अपना एक्सप्रेशन रखिए, लोगों को बारे में क्यों सोचते हैं वो क्या बोलेंगे, वो कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो भी अगर मैं ही सोचूं वो क्या सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे, उनको सोचने तो सोचना है। आई विल बी सेल्फ एक्सप्रेस्ड इन व्हाट आई वांट टू से। इफ आई वांट टू अप्रिशिएट सम ब्यूटी, आई विल से यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग स्मार्ट। इफ दे लाइक इट गुड, इफ दे डोंट लाइक इट ओके, बिग डील। इवन जो सुंदर नहीं है उसमें कोई एक गुण तो है, उसका मन अच्छा है, उसके बोलने का स्टाइल अच्छा है, वो अच्छा लिखता है, जो अच्छा सोचता है, कुछ भी सुंदर तो उसमें है। यस। तो कोई भी कुरूप नहीं होता इस दुनिया में। But again, you are talking of body. See, the difference is what? At the soul level, we are all divine. है ना? सोल लेवल पे मैं भी डिवाइन हूँ, आप भी डिवाइन है, चाहे मैं 80 साल का हूँ, आप 25 साल के हैं, डजेंट मैटर, है ना? आई एम डिवाइन, यू आर डिवाइन। आई एम ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। आई एम पीसफुल, यू आर पीसफुल। आई एम पावरफुल, यू आर पावरफुल। ये सोल लेवल की क्वालिटी है। हम सोल लेवल की ब्यूटी को बॉडी में क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, देह भाव में क्यों जी रहे हैं हम? आई एम ए सोल having a body, I am not a body with a soul. So when you say you are a beautiful soul, that is finished. उसके बाद कोई सवाल नहीं आएगा, उसमें डाउट ही नहीं है ना। काम के सिलसिले में किसी स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए गई हूँ, कहीं भी इंस्पेक्शन के लिए गई हूँ, तो जो अच्छा है उसको अच्छा बोलूंगी, और कोई जो थोड़ा अच्छा नहीं है कहीं, उसको भी बोलूंगी कि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इन चीजों को सुधार लीजिएगा तो आपका और भी अच्छा हो जाएगा। That is as a feedback you are giving, as a feedback you are giving, that is fine. But understand, you are operating as a soul. They are operating as a soul. First appreciation should come at the soul level. Yes or no? बताइए, हम फर्स्ट लेवल पे बॉडी की लेवल पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिकल ये होता है कि उस स्कूल के प्रिंसिपल्स एकदम नाराज हो जाते थे कि आप तो उनको सर पे चढ़ा आप दे समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप देव भाव में जी रहे हो, यू आर लिविंग इन बॉडी कॉन्शियसनेस। आई एम आस्किंग यू टू शिफ्ट टू सोल कॉन्शियसनेस। I am a soul playing a role of Shashidhar. You are a soul playing a role of Renu. He is Amit. He is a soul playing the role of Amit. वो अमित नहीं है, वो एक एक्टर है, सोल है, जो अमित का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई पीपल फ्रॉम द लेवल ऑफ सोल। आई एम ए सोल प्लेइंग ए रोल। आई एम ए ब्यूटीफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, यू आर ए पीसफुल सोल। तो बॉडी की ब्यूटी को नहीं देखना है, सोल की ब्यूटी को देखना है, सोल की डिविनिटी को देखना है। Look at it that way. Your whole perception will change, and how people receive you will change, right? So first understand where are you operating from. बात वही है, आप ग्राउंड फ्लोर से बात कर रहे हो, आप थोड़ा सा हाई लेवल पे आके बात करो। People will receive it in a proper way. करेक्ट? तो आप जो किसी को अगर कोई अच्छा कमेंट्स दे रहे हो, अप्रिसिएशन दे रहे हो, they have to receive it. So don't stop yourself from giving the praise. Change the position from where you are giving the praise. Don't praise their body, praise their soul. Praise the quality. जो उनकी क्वालिटी है उसके लिए अप्रिशिएट करो, है ना?
So मैं you are मैं very इस पर काम dedicated करूंगी in सर। your work. You are very dedicated in your work. You're very hardworking soul. Soul बीच में लाओ, body नहीं. That will be the solution for you. है ना? All मैं right, इस very पर good. काम Let's करूंगी acknowledge सर। Renu ji. थैंक यू, Yes, Amit ji, थैंक go यू ahead. सर। So I want to appreciate Renuji. She's very sweet and very cute. So good appreciation. Very, very Yes. good. Very good. So Very I good to know. would add a few words. She's a very sweet soul and she's a very cute soul, right? थैंक यू सर। Super precise. तो Even at the appreciation should be at It's the all soul your level blessings. first, है ना? तो उसमें वो डिस्प्यूट नहीं कर सकते. बॉडी लेवल पे तो उनको लगेगा कोई टॉन्ट तो नहीं कर रहा है, कोई ये तो नहीं कर रहा है, तो वो सेल्फ वर्थ में और सेल्फ डाउट में चले जाएंगे. सोल लेवल पे नोबडी विल क्वेश्चन, बिकॉज एट द सोल लेवल वी ऑल नो वी आर डिवाइन. करेक्ट? Perfect. Great. And we are exactly at 10 o'clock. So yes, Sandeep ji, go ahead. तो 2 मिनट में ये कहना चाहूंगा, एक तो रेणु जी के साथ मैंने जो है ना वो डॉक्टर सौरव चौधरी का, आपको शायद याद नहीं है, बहुत टाइम हमने एक हमारे वो है उनका काफी अटेंड किए हैं फॉर Okay. मेनी इयर्स. अच्छा. सो मैं रेणु जी भी थे और अच्छा. मैंने भी किए, तो Okay. काफी अच्छे टाइम. वो इस्कॉन के बड़े वो हैं हाँ. रांची में. क्यों Okay. रेणु जी, याद है आपको? नहीं याद? हाँ बिल्कुल याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। और पब्लिक स्पीकिंग पर आपने जो कुछ मुझे दिया वो फॉरएवर मेरे पास रहेगा। मैं कैसे भूल सकती हूँ क्या बात है. आपको वेरी और गुड. उनको। तो आप यहाँ आए, मटेरियल बड़ा तो क्या अच्छा लगा. और शशि जी से बहुत अच्छी लर्निंग हम ले रहे हैं और जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है. और जो रेणु जी जो फील कर रही है ना, मैं भी अपने शब्दों में 1-2 मिनट बताना चाहूंगा. जो एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो काम होता है ना, और जो हमारी फैमिली की बैकग्राउंड होती है, उससे जो हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल जो बन जाता है, तो कई बारी उससे एक इमेज एक हमारी क्रिएट हो जाती है. और लोग जो है ना फिर उसको ही, वो उन्हें भी सूट कर रही होती है लोगों को. यस. वो इमेज उनको जो है बहुत बढ़िया है. जैसे जो कम्युनिकेशन स्टाइल में जिसे अब जाना पैसिव सबमिसिव स्टाइल है, हम जो है किसी को कुछ नहीं कह रहे, और हम ये बड़ा ही सोच समझ के, जिसको कहते हैं ना तोल मोल के बोल, तो हमारा वो स्टाइल हो गया. भाई ऐसा कुछ भी ना कहें, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, साथ का है, बच्चा है, नौकर है, किसी को भी हम कुछ नहीं बोल रहे, तो हमारा वो स्टाइल हो गया. तो उससे क्या होता है कि हमारी एक इमेज एक क्रिएट हो जाती है, और वो आज के समय में वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है. करेक्ट. एग्जैक्टली उससे जब ये भी जो है ना, आप ये देखिए, जब भी आप ईगो या पर्सनालिटी के हिसाब से बात करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही है, क्योंकि ईगो क्लैश तो होगा ही होगा. उससे क्या हो गया फिर, वो क्या, आज का समय ऐसा आ गया कि लोग मटेरियलिज्म में ज्यादा हैं, और जो है हर आदमी ये सोचता है, खासकर इस कम्युनिकेशन स्टाइल के लोगों को वो लोग वर्नरेबल समझते हैं, और वो सोचते हैं इसको तो बेवकूफ बना के निकल जाना बड़ा आसान. तो उससे भी आप प्रॉब्लम सोसाइटी में आ अगेन रही आई है. एम रिपीटिंग, आपको क्रिया पे ध्यान देके अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है. ऐसे लोग अपने आप निकल जाएंगे आपकी लाइफ से. यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कम्युनिटी इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. उसमें जो मैंने अपना पर्सनल फील किया लास्ट 1-2 साल में, अपना जो है ना कुछ कम्युनिकेशन स्टाइल भी बदलना पड़ा, एटीट्यूड बिहेवियर भी चेंज करना पड़ा, कुछ इमेज बिल्डिंग भी, इमेज भी चेंज करनी पड़ी. तब वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ. अदरवाइज काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रैक्टिकल. यस. क्योंकि तो एक आइडिया इमेज, सिर्फ अभी भी वही है जो मैं बोलूंगा, आपको अपने चेतना का स्तर ऊपर उठाना है. क्योंकि अगर आप वहीं पे रहेंगे तो वैसे ही लोग मिलेंगे, और आपकी लैंग्वेज की डिपेंड करती है. सी अगेन, इट इज फोकस इज ऑलवेज ऑन द क्रिया शक्ति, नथिंग एल्स. आप अपनी क्रिया शक्ति से ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे. लोगों को या तो बिहेवियर बदल जाएगा या लोग खुद बदल जाएंगे, दे चले जाएंगे. बट प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू रेज योर कॉन्शियसनेस टू द नेक्स्ट लेवल. So let us focus on Kriya Shakti and let us transform our life and people's life. That is the message. आपके इससे भी जो मिल रहा है स्पिरिचुअल लर्निंग, वो भी हमें हेल्प कर रही है. बिल्कुल. कुछ ऑल बेटर और कुछ सेल्फ करेक्शन भी ला रहे हैं. बट मैंने थोड़ा सा बताया जो मेन पर्सनालिटी और इमेज वाला भी इशू, साथ में हमें वो सेल्फ लेवल पे करेक्ट, उसको भी रिव्यू करके उसको भी चेंज. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. See, ego is your creation. सिचुएशन जो मर्जी हो, ईगो इज माई क्रिएशन, आई कैन चेंज माई ईगो.
और ईगो इज इल्यूशन, ईगो ऐसा कुछ है ही नहीं, ईगो नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक मिथ्या है। अब आप वेदांता वाला ज्ञान यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन आप समझ जाइए ईगो आपकी क्रिएशन है, तो आपको ही चेंज करना है। जो इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता है। जो सबमिसिव है वो क्या एग्रेसिव नहीं हो सकता है। उसको अपने लिमिटेशंस हटानी है, एंड देन द होल वर्ल्ड इज अवेलेबल फॉर हिम, द होल यूनिवर्स इज अवेलेबल फॉर हिम। करेक्ट। तो अपने पैटर्न्स को तोड़ना है। जो पैटर्न्स मेरे को सूट नहीं करती हैं, जो मुझे बेनिफिट नहीं कर रही हैं, जो मेरे लिए प्रोग्रेसिव नहीं है, उनको तोड़ना ही है। चाहे वो बिलीफ हो, एटीट्यूड हो, जो मर्जी हो, मुझे आगे बढ़ना है। वंस यू डिसाइड इट विल हैपन। यस, बाकी हम अगले सेशन में फिर इसको। हाँ जी, that was not our ego, sir. Actually, वी आर नथिंग बट अवर ईगो। अब ये मान के चलिए, अब आइदर यू आर डिवाइन और यू आर ईगो, देयर इज नो इन बिटवीन। आप जिस तरीके के इंसान बन गए हैं, जो आपकी पर्सनालिटी बन गई है, वो ईगो का ही क्रिएशन है और कुछ नहीं है। मैं इस एंड पर ईगो सोचूंगी, sir. ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैक, लो सेल्फ वर्थ। समझिए इस बात को। उस ईगो को ही तो डिस्ट्रॉय करना है, तभी तो आत्मा में आएंगे, अब तभी तो सेल्फ में आएंगे। ईगो इज ऑलवेज ब्लॉकिंग द सेल्फ। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन इज ब्लॉक्ड बाय योर ईगो ओनली, नो। पहले अपने ईगो पैटर्न को समझिए। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन संदीप जी समझ रहे हैं, क्योंकि हमने वेदांता में यही किया हुआ है। वेदांता विजडम जो प्रोग्राम है हमारा, एडवांस वेदांता विजडम, इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रॉइंग योर ईगो पैटर्न्स ओनली, एंड हाउ टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन योर स्वरूप। स्वरूप मतलब आत्म स्वरूप। व्हेन यू आर एस्टैब्लिश्ड इन योरसेल्फ, then you are free from all the limitations, all the barriers. क्लास कभी होगी तो मुझे भी बताइएगा, सर, मैं करूंगी। अभी we will have a guest session very soon in Wednesday, and Wednesday session में हम एक guest session करेंगे। अभी हमारा एक ही session बचा हुआ है, उसके बाद नया बैच बनेगा, so you can register it to that, we will let you know. No? So you're Okay, participating thank in you, the Wednesday programs, you will see that. एक हम guest Okay. session हम Wednesday को करेंगे, तो Thank you, वेदांता sir. विजडम पे होगा वो, and that will help you how to blast holes in your ego patterns, huh? So you will destroy your ego and create a new self which will be absolutely divine. Correct? All right, 7 minutes over time, so now I think it is time to stop. Thank you very much for your participation. Thank you Anil Kumar ji. अगर आपका कोई नंबर है तो आप भेज सकते हैं, in case you have already joined our group, it is great. Otherwise you can write down your mobile number in the chat box. We will add you there, send you the recording. So now we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. Enjoy a great week. We will come back for more in the next week. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take Great care. learning, sir. Great learning, sir. Thank you. Good night. Thank you.